राघव, ज्योति शर्मा, विपिन कुमार शेखरी, कर्मवीर केशव, अरुण कुमार, शुभम यादव, Good afternoon, Honorable Chief Minister Sir, Deputy Chief Minister Sir, Finance Minister Sir, respected officers and my dear friends. My name is Anuj Nehra and I have secured rank 1 in UP PCS 2018. ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आज हमें यहाँ उपस्थित होने का अवसर मिला, जिसकी कल्पना हमने सपने में भी नहीं की थी। मैं हरियाणा राज्य की रहने वाली हूँ और मैं हरियाणा राज्य की रहने वाली हूँ और हमेशा से दिमाग में रहता था कि दूसरे राज्य में फेयर सिलेक्शन होगा या नहीं, लेकिन मेरा सिलेक्शन ही नहीं बल्कि रैंक भी फर्स्ट आया है, जो यह प्रमाणित करता है कि पूरे सिलेक्शन प्रोसेस में कितनी पारदर्शिता थी। मैं स्वयं एक महिला हूँ और महिला सशक्तिकरण की महत्वता को बहुत अच्छे से समझती हूँ। मैं प्रत्येक प्रयास करूंगी जिससे महिलाओं का समाज में सम्मान मिले। यह प्रण करती हूँ कि भविष्य में जो भी कार्य मुझे दिया जाएगा उसे पूरी ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी और डिसिप्लिन से करूंगी। जिस प्रकार से हमारा प्रोसेस कंप्लीट हुआ है, चाहे पुलिस वेरिफिकेशन हो, मेडिकल हो, ज्वाइनिंग प्रोसेस हो, उस एफिशिएंसी के लिए मैं अपने पूरे बैच की तरफ से धन्यवाद करना चाहती हूँ। मेरा उद्देश्य है कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के विजन उत्तम प्रदेश को सत्य एवं निष्ठा के साथ पूरा करूंगी। अंत में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला। धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी का Good evening, Honorable CM Sir, Deputy CM Sir, Finance Minister, dignitaries, and my dear friends. My name is Jyoti Sharma. Currently, I am working as Block Development Officer in Ayodhya, and I have secured 3rd rank in UPPSC 2018. It shows how effectively, transparently, and fairly UPPSC conduct exam and give assurance to all the aspirants that if you do hard work, you will definitely make it to the list. Moreover, I want to thank the UP administration and the UP government that in our whole journey process from medical to PVR, they provide us all convenience so that the budding officers do not get demotivated that their journey are not coming. At the end, I just want to assure the people sitting here that I will do my services with full dedication and try to achieve the dream of our Honorable Prime Minister to make India to a new India by keeping in mind the mantra of Sabka Saath, Sabka Vikas and Sabka Vishwas. At the end, I want to thank CM Sir that he take his valuable time to give us guidance and his blessing. Thanks. माननीय मुख्यमंत्री जी एवं मंच पर उपस्थित समस्त अतिथिगण सभी को मेरा नमस्कार। मैं कर्मवीर केशव, जिला पटना, बिहार से आता हूँ। मैंने यूपीपीसीएस 2018 की परीक्षा में 5वां स्थान प्राप्त किया। यह मेरी इस परीक्षा में प्रथम प्रयास था। परीक्षा के तीनों चरणों से गुजरते समय मैंने यह अनुभव किया कि यूपीपीएससी की परीक्षा की प्रक्रिया और कार्यशैली बहुत ही निष्पक्ष, पारदर्शी, त्वरित एवं सुदृढ़ है। इसका श्रेय मैं माननीय मुख्यमंत्री जी तथा समस्त उत्तर प्रदेश प्रशासन को देना चाहता हूँ। बचपन से ही मेरा सपना लोक सेवा में आकर वंचित और पिछड़े लोगों की समस्याओं का समाधान करना था। आज वो सपना सच होने को आया है। मैं अपने जीवन को जन सरोकार कार्यों के लिए समर्पित करता हूँ। इसी के साथ मैं मुख्यमंत्री जी और समस्त उत्तर प्रदेश प्रशासन को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, जिनके कारण मैं आज से लोक कल्याण कार्यों के लिए लड़ सका हूँ। धन्यवाद। Very good afternoon to the Honorable CM Sir, respected dignitaries, senior officers, and my dear colleagues. I am Ritumpriya, rank 19, UPPCS 2018. I would like to share my experience with you all. I believe my overall journey, right from thinking to start
qualifying it and be here today in front of you has been extremely eventful. It has been a dream come true. There were many highs and lows, but two things kept me going. First, my belief in myself, and second, my belief in the procedure of selection. The way the exam was conducted kept me motivated throughout. The selection procedure was not stalled despite the COVID challenges, and the interviews were conducted timely, and the results were declared. My selection is a proof of the fairness and efficiency of UP Public Service Commission. I believe my selection should encourage more and more people, especially women, to dream big, work hard, and secure place in this prestigious provincial services. I look forward to learn fast, work hard to serve our people through the responsibilities which will be given to me. I assure everyone that I will do my share to the best of my abilities in our CM Sir's endeavor of making Uttar Pradesh, Uttar Pradesh. And at the end, I would like to thank Honorable CM Sir for gracing this event with his presence. Thank you, sir. Thank you all. नमस्कार माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी एवं अन्य मंच पर उपस्थित अतिथिगण। मेरा नाम भावना विमल है और मेरा चयन यूपी पीसीएस 2018 में उप जिलाधिकारी के पद पर हुआ है। यह लगातार दूसरी बार है कि मेरा चयन हुआ है। यह सेल्फ एविडेंट है कि इस भर्ती प्रक्रिया की निष्पक्षता को दर्शा रहा है और साथ में हमारी व्यवस्था को की ट्रांसपेरेंसी को रिफ्लेक्ट कर रहा है। मेरा मानना है कि मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि मैं इस व्यवस्था का अंग बनी हूँ और जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज होंगी वुमेन के प्रति, अभ्युदय योजना और भी कई योजना जो अभी हमारे प्रदेश में कार्यान्वित हैं, उनको डेडिकेटेड होकर उनको इम्प्लीमेंट करना, उनको मॉनिटरिंग करना, उनको प्रॉपर फीडबैक देना, लोगों को सरकार से जोड़ना। इसके अलावा वुमेन के लिए भी मेरी उनकी शिक्षा के प्रति मैं कार्य करूँगी और मुख्यमंत्री जी का जो सपना है उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश बनाना, उसके लिए भी मैं प्रगतिशील रहूँगी एवं मैं चाहूँगी कि उत्तम ही नहीं बल्कि सर्वोत्तम प्रदेश बने। एक बार फिर से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद करूँगी कि उन्होंने अपना कीमती समय हम सबके लिए निकाला। धन्यवाद। Good morning, Honorable CM, respected officers and my dear friends. I am Parag Maheshwari, a graduate from NIT Trichy. Civil services in India are a prestigious career opportunity with every year lakhs of candidates appearing for an exam which in Land Pritchett's words makes Harvard look like a cakewalk. I feel extremely fortunate to have cracked this exam. I had my reservations about it though initially, the plethora of books, the vast course, my weak eyesight, but I kept myself motivated throughout the journey. For this I would like to thank my family, my friends and Honorable CM and especially UPPSC for creating a fair and enabling atmosphere. This is evidenced by the fact that I was never discriminated against and I was always given an equal opportunity. The whole process was conducted with aplomb. I look forward to work in India's most crucial state and exhort prospective candidates to work with the same determination and make Uttar Pradesh Uttar Pradesh. कि उनके प्रशिक्षण के दौरान जितना भी पसीना बहेगा युद्ध के मैदान में उतना ही कम खून बहाने की नौबत आएगी। और मुझे लगता है कि जितना बेहतर प्रशिक्षण और जितना अपनी पहली ड्यूटी के बाद जितना बेहतर कार्य आप कर पाएंगे वह आपकी पूरी सर्विस की नींव होगी और नींव मजबूत होगी तो स्वाभाविक रूप से इस नींव पर बनने वाला भवन भी उतना ही मजबूती के साथ अपनी जीवंतता को प्रमाणित करता रहेगा। यही वह समय होता है जब कोई भी अधिकारी, कोई भी कर्मचारी अपने को प्रामाणिक रूप से प्रस्तुत कर सकता है और यही होता है जब व्यक्ति पतन की ओर भी जा सकता है। ये दोनों हैं। आपका मार्ग क्या है? सकारात्मक मार्ग है तो जनता के साथ सद्भावना के साथ, व्यवहार कुशलता के साथ, न्याय संगत तरीके से उनकी समस्याओं का समाधान करना, व्यवहारिक बनना और बेहतर संवाद के माध्यम से अपनी लोकतांत्रिक प्रणाली का सम्मान करते हुए अपने आप को साबित करना। अगर यह कोई अधिकारी उस समय कर सके
प्रारंभिक 4-5 वर्षों में इस नींव को मजबूती प्रदान कर देता है, तो शेष उसके जीवन के 25-30 वर्ष बहुत आसानी से सफलता की नई नई मंजिलों को चूमते हुए आगे बढ़ता है। आप जो आज उप जिलाधिकारी के रूप में नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे हैं, वही सेवा के अंतिम समय में सचिव स्तर पर आपको जाकर के बेहतरीन सेवा का एक अवसर प्राप्त होता है। एक अच्छे करियर के रूप में संतुष्टि भरा जीवन आप लोग लेकर के जाते हैं कि मैंने भी उत्तर प्रदेश शासन में किन किन विभागों में सचिव के पद से सेवानिवृत्त हुआ हूं या कमिश्नर बनकर के सेवानिवृत्त हुआ हूं। यह एक अवसर उसके सामने होता है और आने वाली पीढ़ी के बड़े बहुत कुछ देने के लिए भी होता है। सर्विस के बाद भी उसके लिए कैरियर के तमाम रास्ते खुले होते हैं, लेकिन जब इस शुरुआती 5 वर्ष का कार्यकाल व्यक्ति का विवादों में घिर जाता है, नकारात्मकता की ओर जाता है, भ्रष्टाचार से घिर जाता है, तो उसके बाद आगे के 25-30 वर्ष उसके जीवन में संकट के ही होते हैं। उसका कोई आगे का भविष्य नहीं होता।